Yes. So today we are going to start with the topic of users. Now who are called as users? हम users बेटे किसको कहते हैं? Who are the persons who are using our accounting information? We have studied about how to make accounting information, how to prepare books of accounts, which all books we are going to prepare. We have studied. Like first of all, we will prepare journal and then ledger and then trial balance, balance sheet, profit and loss. We studied. Now, who are the parties who are interested to know about our accounting information? ठीक है जी. So इसको थोड़ा simplify कर देते. There are two types of persons who are interested in our accounting information, which are, and I think we have already discussed this also. First is internal users and the other one are external users. See, internal and external. Now, who are internal users? See, internal means the persons who are inside the business. Like we are talking about accounting information. For example, it is related to say HDFC. This is the name of the organization. And we are studying about accounting information of HDFC. So who will be interested in HDFC's account? Who will be interested to know that if HDFC has earned some profit, if HDFC has suffered with the loss, if HDFC has paid its salary or not? So like this. So two parties are there. One is internal and external. In internal environment, who all persons can be there? You can give it a try. Any one of you? I have already told you. Okay, Ansh wants to answer. Ansh. Owner. Sorry? Owner. Owners. Okay. So internal mein Ansh is saying number one is owners. So who are the owners? When we say owners, who are the owners of the business? मैम जिसकी कंपनी हो. Sorry? जिसकी कंपनी होती है. जिनकी कंपनी होती है. Okay. So owners, simple language में बोले तो these are the persons who have spent money, who have invested money on the business. जिन्होंने business में पैसा लगा के who are going to take all the risk. So जिसने पैसा लगाया, business चलाया, obviously he will be interested to know कि if the paisa I have invested, if the investment I have made, if the risk I have taken is worth taking or not. कोई फायदा उसका मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? So definitely owners will be interested to know. Okay. Yes, Harmeen, or I'm asking you to unmute. Yes. Employees. Employees of the business. Yes. Employees, और हम इसको workers भी बोल देते हैं. So any word you can use, both of them are correct. Employees. So employees, how can you think like employees may be interested? Because they work for the enterprise, so they will have access about the accounting information of that enterprise. I am unable to hear you properly. If possible, kindly Ma'am, speak a little louder. because the employees work for the enterprise, so they will have information about the accounting information they will have. Okay. So, for example, you are saying that, for example, I am working for Swami Sandas Public School. So I must have information about school, how much assets they have, where they have invested their money, how many financial assets they have. No, the ones who are working at the account office, they will have information about that. They will have information. उनका तो बेटे काम है ना. They have the information because this is their duty to prepare the books of account. Rest, I don't know. I don't think we are required to see. हमें क्या लेना देना? We are not interested to know, but we are interested. How we are interested then? See, we are not interested to know कि school के पास financial assets कितने हैं. We are interested to know कि if the school is earning some money, so that they will give it back to us in the form of financial incentive. जैसे वर्कर्स की अगर हम बात करें
तो फैक्ट्री में क्या होता है, इफ यू आर वर्किंग गुड, आपने बहुत एफर्ट किया इस साल, and the company, your owners, they have promised you, if you will work hard, you will get, like, we will earn more profit, we will give you double bonus. So now they are interested to know if we are going to get bonus or not, if we are going to get some extra money or not. One thing. The other thing is एक PF होता है, आपने सुना होगा शायद किसी ने, PF, Provident Fund. Have any one of you ever heard about this word? Then only raise your hand. PF. Anyone? Nirlep. Okay. Yes, Betty. Nirlep. You can unmute yourself, but you have to switch on your camera also. Nirlep. Okay, Nirlep, you have raised your hand, but you are not answering. Okay, Ayush Chawla want to. यस मैम, मैम जो सैलरी में से गवर्नमेंट टैक्स काटती है। Okay, it is basically not tax. It is a type of saving. See, in the organization, in the formalized sector, actually it happens. तो public sector में होती है या formal organizations में, जितनी भी किसी employee की salary होती है ना बेटे, उसमें से कुछ part deduct कर लेता है employee. अब कुछ part जो आपका deduct कर लिया, what is that used for? That amount is being deposited in your provident fund account. एक account होता है provident fund, PF बोलते हैं उसको, provident fund, जिसमें your that saved amount is being deposited on your name, and according to Indian, मतलब Indian हमारी जो rule है legislature के accordingly, whatever amount will be deducted from the salary of an employee, the same amount will be deposited in this account by the employer. So for example, हरमीन कौर मेरी employee है, मैंने उसकी सैलरी में से 1000 रुपीज डिडक्ट करके पीएफ में सबमिट, मतलब डिपॉजिट कर दिया हरमीन के नाम से. So the same 1000 rupees I have to submit in his account, in her account, same amount. So Harmeen will get at the end of the day, she is getting 2000 rupees in her provident fund account. So this is a benefit for the employee. फायदा ये, आपकी सैलरी में से 1000 काटते हैं, 1000 अपनी तरफ से और डालते हैं. So that 2000 is being deposited in provident fund account, which you can get at the end of your service. Like जब आप job छोड़ते हो, then you can get this money back. Or there are other obligation, like other options also. कुछ time period है, कुछ amount fix है, तो that way you can get this money out if you want during your job tenure also. So this is provident fund. This is a benefit for the employee. तो अब employee ये देखना नहीं चाहेगा कि क्या मेरा employer ये पैसे जमा करा रहा है कि नहीं करवा रहा. ऐसा तो नहीं कि मेरा ही 1000 रुपए निकाल रहा है और 500 करके जमा करवा रहा है कि 500 employee के 500 employee के. No, it should be 1000, 1000, 2000. So this is another reason why the employees are also interested to see the books of account. तो दो रीजन मैंने आपको बता दी, एक उनको बोनस देखना है, दूसरा उनको अपना पीएफ की डिटेल देखनी है. ओके जी. इसके अलावा और भी बड़ी सारी ऑप्शंस होती है, जैसे इंश्योरेंस होती है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस करवाता है, तो एम्प्लॉय वो भी देखना चाहता है कि मेरी इंश्योरेंस हो रही है कि नहीं हो रही. जैसे गवर्नमेंट ने बोली थी मेरी हेल्थ फैसिलिटी के लिए जो कुछ पॉलिसी करवानी है वो करवाई है कि नहीं करवाई. यस, एनीवन एल्स, एनी अदर पार्टी व्हिच यू थिंक कैन बी देयर इन इंटरनल यूजर्स. Okay, Yadvi want to answer. Yes, Yadvi. Nirlip, Management. you need to switch on your camera. Nirlip. Yes, Yadvi. Management. Management. Now, what is management, Betty? What is management? Management helps in decision-making process. Like in a layman language, if I ask you, तो आप मेरे को बता सकते हो who are the management people? किसको कहते हैं मैनेजमेंट? होता कौन है? क्योंकि ओनर तो हमने अलग से लिख दिए, तो मैनेजमेंट अलग से होगी. तो ओनर और मैनेजमेंट सेम नहीं होंगे कि अलग होंगे? Okay, Vasu wants to answer. Vasu.
बेटे कैमरा नहीं ऑन है आपका। यस मैनेजमेंट में मैम वो आते हैं मैम, जैसे ओनर थोड़ी हर जगह जाएगा मैम, कोई परचेज करने, उसने अपने नीचे लोग रखे होंगे जो जाएंगे। जैसे कि मैम कोई चीज परचेज करने के लिए या कोई चीज चेक डिपॉजिट करने के लिए। वो तो अकाउंटेंट भी जा सकता है ना, अकाउंटेंट भी जा सकता है। परचेज के लिए तुम किसी को भी बोल सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाते हैं, तो फिर मैनेजमेंट कहाँ होगी। बाकी भी मैम हो सकता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपका ये प्रॉब्लम, ये डाउट क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज नाउ वी आर इनटू दिस अकाउंटिंग एंड कॉमर्स में आ गए, तो थोड़ी थोड़ी वर्ड्स ये हमें क्लासिफाई करने आने चाहिए। सी बेटे ओनर्स कौन होते हैं? नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, किसी छोटे बिजनेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फगवाड़ा में आसपास आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज है, कुछ फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी फैक्ट्री, तो उसका एक ओनर है, एक ओनर का बेटा है, एक उसकी बहू है और 2-3 फैमिली मेंबर्स है, वही उसका सब कुछ है। उसमें से एक बंदा चेयरमैन है, एक बोलता है ये जो हमारा ये चेयरमैन सर है, ये एमडी सर है। इस तरह से उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो उनका बिजनेस चलता है, दे आर अर्निंग गुड मनी। सो दे इन दैट केस ओनर एंड मैनेजमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। वही ओनर वही मैनेजमेंट, उन्होंने पैसा लगाया, वही बिजनेस चला रहे, वही डिसीजन ले रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, ठीक है। दे आर द वन हु आर गोइंग टू डिसाइड कि अच्छा इतना पैसा इधर लगाना है, इतना इधर लगाना है, ये मशीन नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, ये वाली पार्ट को बंद करना है, इस पार्ट को स्टार्ट, व्हाटएवर डिसीजन दे वांट टू टेक दे विल डू ऑन देयर ओन। वेयर इन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओनर और मैनेजमेंट वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज में। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस कंपनी, या रिलायंस की भी बात छोड़े तो रिलायंस ही ले लेते चलिए। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी में मिलियंस ऑफ रुपीज, मिलियंस के फिर बिलियंस ऑफ रुपीज आर बीइंग इन्वेस्टेड। So all the persons who have invested in that company and became the owners of the company, एक शेयर्स होते हैं कंपनीज के, जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो आपको अगर लगता है कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी एंड अनिल अंबानी और उसकी वाइफ, ये जो 4-5 लोग हैं, जो उसके बच्चे, they are the owners of the business, then you are wrong. Owners of the business are all the persons who have purchased shares of that company, who have become the owners. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बेटे, इसके more than 100 ओनर्स होते हैं। कोई हो सकता है जर्मनी में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई मुंबई में है, कोई पंजाब में बैठा है। So all the persons who have purchased shares, who have invested their money, they became the owners of the business. But Reliance company के अंदर जाके डिसीजन तो नहीं वो सारे लेते, they have just invested the money and then they are sitting idle at their home. जैसे ही बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करेगा, उनको अपना पैसा मिलता रहेगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर उनको पैसा वापस मिलेगा। So in this case they are the owners of the business but not the management of the business. Who is the management now? ऐसी कंपनीज में जो डिसीजन मेकिंग के लिए लोग अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल कंपनी की बात करें, गूगल तो सबको मालूम है, तो गूगल कंपनी इंटरनेशनल है, मतलब इंडिया की तो नहीं है, फॉरेन कंट्री की। तो उस कंपनी में जो ओनर्स हैं, जिनका पैसा लगा है, वो दे आर समवन एल्स, हमें नाम भी नहीं पता है उनको, वी डोंट नो हु आर दे। आपको पता है गूगल कंपनी में किसका पैसा लगा? यू नो द नेम ऑफ द पर्संस, यू डोंट नो, बट वी नो ओनली अबाउट द मैनेजमेंट। हमें किसकी नाम पता है? किसी को पता है गूगल के? हम पूछते सीईओ कौन है, इंडियन है? एनी वन ऑफ यू हु इज द सीईओ ऑफ गूगल? अभी सर्च नहीं करने लग जाना गूगल पे। ओके, अंश वांट्स टू आंसर। यस अंश बेटे। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई इज दी, अब आप बताइए सुंदर पिचाई का नाम हमें पता, सीईओ है कंपनी के, इज ही द ओनर और द मैनेजमेंट? सुंदर पिचाई क्या है? सुंदर पिचाई, आप आज गूगल पे ये सर्च करना, सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है, हिज सैलरी इज, आप खुद सर्च करना, आई विल नॉट टेल यू। तो ही इज एन a part of management of the business. Management means
The persons who are being appointed on the higher post, the one who are going to take the decision, but they are not the owners of the business. वो owner नहीं होते हैं. They are the decision makers. They are being appointed by the owners. Owners खुद कुछ नहीं करते हैं, इसलिए they have appointed management. Management में हमारे पास CEO है, chairmen है, MDs है. इन big companies उन्होंने appoint किए होते हैं. जैसे HDFC बैंक है, उसका आपको पता होगा who is the chairman and who is the CEO. PepsiCo कंपनी है, उसकी CEO. ये बिजनेस वाले बच्चे हो आप लोग, you all should know the names of the founders and then the names of the CEOs of the company. In many companies, the owners may be a part of management, may be. But in some companies, the owner may not be a part of management. Management are actually appointed by owners. They are the one who are going to take the decision, who are actually running the business. Business चलाते यही है, पर पैसा इनका लगा होता है. ठीक है जी? Is it clear? तो मैनेजमेंट अब क्या देखना चाहती है अकाउंट से? मैनेजमेंट wants to see कि whatever decision we have taken, क्या वो सही गए? पास्ट में जो हमने डिसीजंस लिए, जो हमने चेंजेस अपने बिजनेस में लाए, were they worth it? And now what all decision we are going to take in the upcoming future, that is also to be decided by the management. So these three parties are a part of internal users. Now let's come to the external users. अगर इसका अभी इतना नहीं समझ आ रहा है आपको, you will understand it later. Business studies में shares, debenture holder, ये सारे types आएंगे. Then वहां पे आपको जब सर पढ़ाएंगे, ओनर्स और मैनेजमेंट का डिफरेंस आराम से समझ आ जाए. ठीक है बेटे? तो थोड़ा सा अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो पेशेंस भी रखनी है, क्योंकि विद टाइम यू विल लर्न एवरीथिंग. अगर आप सोचो कि आज ही आपको सब कुछ आ जाए तो यू विल नॉट. ठीक है? External users are the parties who are outside the business, but they are also interested to know about the company and the accounting information. So who all will be there? External users. You can give me the answer. Okay, only Yadavi is interested to answer. Rest everyone is sleeping. Okay, Nandini. People who are going to take the benefit of the services. People who are going to take the benefit of the services means customers or consumers you are talking about. Yes. Okay, Nandini ने तो कर दिया है. Nandini, unmute yourself. I want to know. Yes. आपको मुझे ये भी बताना है साथ में कि why they are interested. Why do you think कि they are interested? Consumers Because they need it. I can't hear you properly. Okay, Sifakpreet, you can answer this question. मैम जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होंगी वो इंटरेस्टेड होंगी. ओके, तो सिफरप्रीत रीजन आपने बता देना है साथ में. उन्हें पता होना चाहिए कि उनका कॉम्पिटिटर मतलब किस पोजीशन पे है, ताकि वो उसको अच्छे से compete कर सके. ओके, तो पहला हमने एक पॉइंट यहाँ पढ़ लिया कॉम्पिटिटर्स, दूसरा हमने पढ़ लिया कंज्यूमर्स. कॉम्पिटिटर आर इंटरेस्टेड टू नो कि मेरे कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटेजी है, तो मैं भी वो स्ट्रेटेजी अपनाऊं. वेयर इन वो कहाँ से पैसे बचा रहा है, कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रहा है, कैसे प्राइस फिक्सेशन कर रहा है, तो he will also be able to make his own decisions. So that is true. Okay, Balpreet, you can answer. मैम टैक्स अथॉरिटीज. Taxation authorities, yes. तो मैं इसको कंबाइन करके लिख देती हूँ, गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन अथॉरिटी, और सेपरेटली भी लिख सकती हूँ if I want. So government, we have discussed it earlier also. Government is interested to see that if the business is lawful or not. Government क्यों देखना चाहती है? कहीं illegal business तो नहीं कर रहे हो तुम? तो government obviously देखेगी आप कहाँ से पैसा ला रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस किस आइटम में आप डील कर रहे हो. And taxation authority, why they are interested? They want to know कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया ताकि आपसे टैक्स चार्ज किया जा सके. ठीक है? एंड इफ यू हैव पेड टैक्स, क्या आपने सही टैक्स पे किया या कम किया, चोरी तो नहीं किया टैक्स का. सो दैट इज द थिंग. ओके, अंशुल, यू कैन आंसर. बैंक्स. बैंक्स, वेरी गुड. बैंक्स को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लिख सकते हैं बेटे, वन एंड द सेम थिंग है. ठीक है जी? तो आगे से कभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो यू विल अंडरस्टैंड एनी इंस्टीट्यूशन व्हिच कैन प्रोवाइड यू फाइनेंस. इट मे बी जैसे महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा, so many financial company. You
जो आपको नाम ऑलरेडी बताए। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे आर इंटरेस्टेड टू नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्योंकि उनको लोन देना। तो वन थिंग, क्योंकि उनको लोन देना, दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि क्या ये कंपनी वर्थ है, हम इसको लोन दे, वापस करेगी कि नहीं करेगी, एक थिंग। द अदर थिंग, इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन लोन, फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको लोन दे दिया, आपने बोला हमने एक नया प्लांट लगाना, लोन मिल गया, तो बैंक अब ये भी तो देखेगा ना कि जो इन्वेस्टमेंट हमसे पैसा लेके करी, इज इट वर्किंग और नॉट, वो पैसा चल रहा है कि डूब रहा है, ठीक है जी। सो दैट इज द अनदर रीजन व्हाई दे आर इंटरेस्टेड। ओके, एनीवन एल्स? Nirlip, earlier you, okay, Devanshi. Yes, Devanshi, you can answer. Ma'am, investors. Investors, okay. So investors are other parties. Investors oblique potential investors. तो यहाँ पे दोनों पार्टीज हमारे पास होते हैं, एक जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, they are also interested कि मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है, सही चल रही है, नहीं। Yes, Devyanshi, you can answer. Yes, ma'am, because they rely on the accounting information. Yes, they rely on accounting information, but they want to know what they want to know. They want to know about their money invested. Yes, they want to know about the money they have invested. If it is like कुछ गेन हो रहा है उनको, कुछ प्रॉफिट उनका हो रहा है, उनका मनी जो है वो मल्टीप्लाई होके वापस आनी चाहिए। ये तो नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो मुझे 1 लाख ही वापस आए, तो मैं तो हैप्पी नहीं होंगी। आई वांट कि अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे 1,50,000 मिले। सो दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स वांट टू नो, इफ देयर मनी जो है उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं। नंबर 1। नंबर 2, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होते हैं दोज हु हैव कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट, दे आर मेकिंग अप देयर माइंड कि पैसा लगाएं कि ना लगाएं, वो पोटेंशियल इन्वेस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव 1 लाख, आई वांट टू इन्वेस्ट बट आई एम नॉट श्योर, आई एम चेकिंग ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज कि ये कंपनी ठीक है, नहीं ये नहीं ठीक, ये वाली कंपनी ठीक है। सो आई विल बिकम पोटेंशियल इन्वेस्टर, आई विल survey, I will study, and then I will make a decision. Once I will invest, I will become investor. So both the parties, they will see the accounting information. Any other point which is left? Okay, Vasu. Yes, Bete. Creditors. Creditors, okay. So creditors word is again I think new to you. और नाम से पता चलता है credit. तो क्रेडिटर कौन होता है? जो आपको क्रेडिट देता है। क्रेडिट मींस जो आपको उधार दे। तो उधार में द अदर पार्टी में भी मे नॉट बी लेंडिंग यू मनी, उधार में पैसा नहीं दे रहा वो, क्योंकि अगर कोई पार्टी आपको पैसा दे देती है फिर तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा, फिर तो वो बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आर द पार्टीज हु आर सप्लाइंग यू गुड्स और रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, जो आपको क्रेडिट पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, दे आर द क्रेडिटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिटर, ठीक है। जो आपको उधार पे सामान देता है क्रेडिटर, जो आपको उधार देता है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनी अदर पॉइंट व्हिच इज लेफ्ट? रिद्धि वांट्स टू आंसर। रिद्धि, रेज योर हैंड, देन आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। यस, yes, you can unmute yourself. Public. Yes, so public is also there, you are right. Consumer, पहले हमने एक पॉइंट लिखा था, पहले भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है। Why consumers are interested to know about the public is another point. Why consumer are interested to see what is the profit and what is the accounting position of the company. See, consumer, you want me to unmute? Okay, Riddhi, you can speak now. I've asked you to unmute. मैम, कंज्यूमर्स इसलिए कहते हैं कि उनको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए, ताकि, और सम प्राइस आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू नो अबाउट, यानी कि गवर्नमेंट कुछ प्राइसेस पीछे से फिक्स कर देते हैं ताकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स में एक्सप्लॉइट ना हो। और पब्लिक का?
पब्लिक में मैम पब्लिक भी ये देखना चाहती है कि वेदर द बिजनेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी और नॉट, लाइक कि एम्प्लॉय प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को कि नहीं। ठीक है, that's it. Okay. तो कंज्यूमर पॉइंट में कंज्यूमर आर द पर्संस हु आर यूजिंग अवर गुड्स, जो हमारी गुड्स को यूज करते हैं, दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ द। तो व्हाई दे आर इंटरेस्टेड टू सी, बिकॉज सी समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड प्राइस ऑफ समथिंग एंड देन एज अ कंज्यूमर आई एम परचेजिंग दैट थिंग फॉर व्हाट पर्टिकुलर अमाउंट। आई वांटेड टू नो कि कंपनी को वो चीज पड़ती कितनी, what is the cost of production to the company and on what basis government has fixed this price, and if I am getting the goods at reasonable price or not. Example, otherwise also I want to know if the company is working on reduction of the cost, because अगर company cost कम कर रही है तो आने वाले time में the prices of the product may fall. This is about the consumer, how they are interested. Then public कौन होती है? General public, जैसे हम हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है business के साथ, but still we want to know. जैसे अभी कोविड में we have studied about, आपने न्यूज में भी सुना होगा, different companies have given a lot of charity and help to the COVID victims, या फिर to provide masks and sanitizers and so and so. So all the companies, they have not invested, they have donated money to provide these facilities. So as a public, आज पब्लिक को काम क्या होता है? बस दूसरों को देख के क्रिटिसाइज करना कि ये देखो, एक अभी मैं न्यूज में पढ़ रही थी कि रतन टाटा एंड रिलायंस, both these companies have given a lot of donation during this COVID time, whereas the other MNCs जैसे ये Amazon है या और जितनी भी ऑनलाइन या MNCs हैं फॉरेन कंट्रीज की, they have not donated इतना अमाउंट जितना Indian businesses they have donated in the country. So news headlines was saying कि end में काम हमारे Indian companies ही आती है। हम सारी जिंदगी फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ब्रांड्स जो हमारी फॉरेन कंपनीज की ब्रांड्स हैं हम उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। टाटा की गाड़ी हम प्रेफर नहीं करते, रिलायंस की प्रोडक्ट हम प्रेफर नहीं करते, बट जब देश को मुसीबत आती है तो अपनी जो कंट्री की कंपनीज हैं दे आर आल्सो ओनली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। I am not against any company, मैं आपको सिर्फ न्यूज हेडलाइन सुना रही हूँ। तो in that news it was there. So this is how am I as a public, मैं एक पब्लिक का पार्ट हूँ, मैं सिर्फ यही देखना चाहती हूँ कि कौन सी कंपनी क्या करती है, कौन सी कंपनी चैरिटी कर रही नहीं कर रही, कौन सी कंपनी लोगों की हेल्प के लिए कुछ कर रही नहीं कर रही, और मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना सोनू सूद ऑक्सीजन दे रहा नहीं दे रहा, हमें क्या, until and unless I will be benefited from that, I have no interest to know. But as a public, मेरे को अपनी जनरल नॉलेज के लिए ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या कर रही। सो दैट इज हाउ इन इंडिया, आपको पता है कि लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों के काम में इंटरेस्ट है, तो पब्लिक हमारी इंटरेस्टेड है देखने में कि कौन सी कंपनी क्या करती है। ठीक है जी। और लास्ट में एक और पॉइंट बचता है, दैट इज रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं बेटे? रिसर्चर्स आर द पर्संस हु आर स्टडीइंग अबाउट द accounts and accounting information of the company or various companies, and then they are making some conclusion. आपने देखा होगा गूगल पे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे सर्च करोगे? गूगल पे। गूगल विल टेल यू व्हाट गूगल विल टेल यू, गूगल विल टेल यू अबाउट कि this company is earning this is this profit, this company has these and these products they are selling. So इस तरह की information गूगल will provide you. From where Google will get the information? Google के पास कहाँ से आया? Google में रिसर्चर्स हैं, तो रिसर्चर्स आर रिसर्चिंग समझते हो, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, they are studying the accounting information of various companies and then putting this information on internet. This is not only, Google is not only search engine, there are so many other, आपने देखा होगा आप गूगल पे लिखोगे रिलायंस तो कितनी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, तो जितने भी पीपल दे आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस इंफॉर्मेशन वो किसी ना किसी ने रिसर्च करा होता है। सिमिलरली न्यूज पेपर में, मैगजीन में और अदर हैंडल्स पे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है अबाउट द कंपनी, वो भी कहां से आती है? रिसर्चर्स करते हैं एंड देन दे विल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू यू। ठीक है बेटे जी। सो दैट इज ऑल। दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है जी। Who are internal and external users and why they are interested? मैंने हर एक के पीछे why बताया आपको कि why they are interested, what they want to know,
what they want to study. So this is very important question, please note it down and this is your homework today. इसके अच्छे से 6 marks के notes बनाने हैं. Okay, Balpreet wants to ask something. Yes, Balpreet. मैम 6 मार्क्स में ये सारे वाई वगैरह के साथ मिला के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आएंगे? yes, सारे के सारे. आप ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि एक्सटर्नल्स का बताओ सिर्फ, तो आप ये लिख दोगे. अगर मैं बोलूंगी सिर्फ इंटरनल्स का बताओ तो वो लिख दोगे. अगर मैं जनरली लिख दूंगी कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर मैंने क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द यूजेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, तो फिर आपको सारा के सारे 6 मार्क्स है तो आप कोई भी 6 पॉइंट फिर लिख सकते हो. अगर मैंने कॉमन क्वेश्चन यूजर्स का डाला तो आप इन सब में से एनी 6 पॉइंट्स यू कैन गेट. अगर मैंने पर्टिकुलर इसका डाला है तो ऑल 3, अगर मैंने पर्टिकुलर इसका डाला तो इसके 6 पॉइंट्स आप लिखो. ठीक है जी, बिकॉज़ सीबीएसई से 6 मार्क्स 6 पॉइंट्स होंगे. नोट्स बनाने के लिए आप पूरा का पूरा ही बनाओ. ठीक है जी. लास्ट टॉपिक व्हिच इज लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, इट इज व्हाट इज डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री. थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. और वैसे भी जब आप आगे चैप्टर्स करोगे डबल एंट्री सिंगल एंट्री आपको खुद ही समझ आ जाएगी. ठीक है, तो आई विल जस्ट गो विद द मीनिंग ऑफ बोथ एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, आई हैव सेंट यू द क्वेश्चंस, हैव यू सॉल्व्ड इट? All of you MCQs भेजे थे आपको, have you solved it बेटे? Okay, we will discuss the answers tomorrow. Yes, Ayush, you want to say something? You want to say yes? Okay, no problem. We will discuss the answers tomorrow. This is an exercise which we used to do every day. पहले आपको वो समझा देती हूँ. What is the meaning of double entry and what is the meaning of single entry? Simple सी language में आपको मैं बता देती हूँ. See बेटे, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक होती है डबल एंट्री और एक होती है सिंगल एंट्री. सी इन आवर बिजनेस दिस इज अंडरस्टूड एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू. whenever something happens there it has a dual impact. For example, मैंने गुड्स खरीदे तो कैश इज गोइंग आउट एंड गुड्स आर कमिंग इन. तो 2 चीजें होती हैं, कोई चीज बाहर जाती है उसके बदले में भी अदर एस्पेक्ट इज कमिंग इन. व्हेन आई रिकॉर्ड बोथ दीस 2 एस्पेक्ट्स कि पैसा गया गुड्स आए, इट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री. व्हेन आई रिकॉर्ड ओनली सिंगल एस्पेक्ट, सिंगल एस्पेक्ट कैसे होता है? जैसे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, दुकानदार है, उनको पता नहीं है कि डबल एंट्री क्या है. वो क्या करते हैं, गुड्स खरीदे 50,000 की, दैट्स ऑल, वो इतना ही लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री. एक ही चीज लिखी उन्होंने कि हमने 50,000 के गुड्स लिए, उन्होंने उसका द अदर पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्रेडिटर था एक्स, उसने मुझे पैसे दिए 10,000, तो मैं लिख लेती हूँ एक्स पेड 10,000 रुपीज. दिस इज अगेन सिंगल एंट्री. इसी चीज को मैं डबल एंट्री में कैसे लिखूंगी? 50,000 के गुड्स लिए तो मैं लिखूंगी कैश जो है वो चला गया 50,000 का और गुड्स जो है वो आ गए हैं 50,000 के. आई विल राइट इट लाइक दिस. ठीक है जी. डबल एंट्री में मैं लिखूंगी कैश माइनस हो गया 50,000, गुड्स प्लस हो गए 50,000. सो दिस इज कॉल्ड एज डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम in which I will record both aspects. ठीक है. Before I forgot, enter your attendance. I've shared attendance link. We are already running out of time. This is your homework. Double entry, single entry. You are supposed to study about the features and importance of double entry. Single entry का ज़्यादा detail है नहीं. ठीक है. We will not go in that